Hello guys, today we are discuss about the first chapter of 10th standard science 2, that is heredity and evolution. As we all know that heredity means transmission of character from one generation to another generation. And what is evolution? Evolution, it means that change occurred in heritable characteristics of biological population. So guys, and basically, who is the responsible for transmission of character from one generation to another generation? That is a gene. And what is gene? A gene is a functional segment of DNA. But knowing this all term, so many scientists took long time for understanding the basic concept of heredity. So guys, today we seen the six main scientists, his role, and what they suggest us regarding the heredity. So guys, that's, as you all know, that's a plant cell and animal cell, and inside the cell there is a nucleus, and inside the nucleus that is a DNA which act as a genetic material. But for understanding that term, that a gene or for a DNA means, for understanding the term DNA as a genetic material, it took very long time, and so many scientists work for that term. So guys, today we are discuss about DNA, their history, and which scientists play very important role for understanding the basic phenomena regarding the heredity. And as we all know that what is DNA? DNA is a deoxyribose nucleic acid, and it is present inside the nucleus. Not only inside the nucleus, actually it is bind up inside the chromosome. And as we all know that in a single cell, basically in human being, there is a approximately 10 trillions of cells present, but in single cell there are the 6 feet of DNA is present. It means that more than human height. Okay, but the question arises, how that DNA get bind up in single chromosome? And for understanding that all term, we seen the first we seen the term that we scientists play very important role in that basic phenomena. So in basic, we know that DNA is a genetic material. That full form is a deoxyribose nucleic acid. It is bind up inside the chromosome. And what is chromosome? Chromosome, it is present inside the nucleus. So guys, it is on the screen, that is a chromosome, and that is a DNA is act as a genetic material, and the functional segment of DNA is called as a gene. Okay, go to the next PPT. The first scientist which play very important role in a genetics, the name of that scientist is Sir John Gregor Mendel. His work, actually Sir John Gregor Mendel is a great mathematician. Actually he is an Australian monk, as well as he has a father in a church. But he is called as a father of genetics, as well as he is called as a pioneer of the genetics, because Mendel performs a work on a pea plant. सर जॉन ग्रीगर मेंडल एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, ये एक पायोनियर भी कहलाते हैं जेनेटिक्स के. देखो कितना कितना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि एक मैथमेटिशियन ने जेनेटिक्स की शुरुआत की. तो सर जॉन ग्रीगर मेंडल एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, एक ऑस्ट्रेलियन संत थे, जो एक फादरी थे चर्च में, और इन्होंने सबसे पहले काम किया, दैट्स द फर्स्ट ही वर्कड ऑन फर्स्ट प्लांट, दैट प्लांट, द नेम ऑफ दैट प्लांट इज एन पिजियम सटाइवम. हम उसे हिंदी में बोलते हैं कि हम उसे गार्डन पी प्लांट भी हम इंग्लिश में कहते हैं, कि पी प्लांट पे उन्होंने सबसे पहले वर्क किया. ही नोटिफाइड दैट when that character get transmit from one generation to another generation, मतलब जब एक प्लांट में से कैरेक्टर दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट हो रहा था, तो उन्होंने एक ऐसा नाम कहा, कि उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि यहाँ पे कुछ तो भी ऐसी चीज प्रेजेंट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, और उन्होंने इस चीज को नाम दिया था फैक्टर. इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी नाउ डेज दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज एन जीन. बट मेंडल्स ने ये काम कब किया था? तो ये काम किया था नियर अबाउट 1886 में, जब
जहाँ पे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जहाँ पे हमें जेनेटिक्स पता नहीं था, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे ऐसी कोई तो चीज़ प्रेजेंट है प्लांट में या फिर सेल में, ऐसी कोई तो भी चीज़ प्रेजेंट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, जो कैरेक्टर लेके जा रही है। दैट टर्म इज कॉल्ड एज एन अ फैक्टर। तो सर मेंडल्स ने सबसे पहले वो टर्म को क्या कहा था? फैक्टर। सो गाइस, दैट्स वाई सर जॉन ग्रीगर मेंडल इज कॉल्ड एज एन फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन इन्होंने जो काम किया था पिजम सटाइवम या फिर पी प्लांट पे, जिनका वर्क बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है जेनेटिक्स में। दैट्स वाई सर जॉन ग्रीगर मेंडल इज कॉल्ड एज एन पायनियर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो जेनेटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई है? सर जॉन ग्रीगर मेंडल से, जिन्होंने सबसे पहले काम किया था पी प्लांट पे। और कैरेक्टर ट्रांसमिट किसके कारण हो रहा है? तो उन्होंने नाम दिया था फैक्टर, जो आज हम उसे जीन कहते हैं। सो नेक्स्ट साइंटिस्ट ह्यूगो मेरी डेवरिस। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले काम किया इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे। तो इन्होंने ऐसा देखा कि जब कभी भी कोई प्लांट अपने कैरेक्टर मतलब ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर एज इट इज ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ तो भी चेंज हो रहा है। जैसे उन्होंने देखा कि इवनिंग प्रिमरोज प्लांट में जैसे लीफ थे या फिर जैसे कुछ कैरेक्टर थे, वो एज इट इज वहाँ पे ट्रांसमिट नहीं हुए, तो उसमें कुछ तो भी चेंज की हुआ। तो ही सजेस्ट दैट इन 1991 ही सेड दैट द टर्म इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो मेरी डेवरिस, ही वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज प्लांट एंड ही नोटिफाइड दैट देयर इज something change in the characteristics of their parents. That's why their offspring showing some dissimilarity with them. That term is called as a mutation. According to Hugo Mary Duris, the mutation theory that living organism develop changes to their genes, मतलब उसके जीन में ऐसे कुछ तो भी चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण उसके ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है? चेंजेस शो हो रहा है। दैट्स वाई ह्यूगो मेरी डेवरिस इज कॉल्ड एज एन मतलब उन्होंने ये पायोनियर थे म्यूटेशन थ्योरी की, कि सबसे पहले म्यूटेशन थ्योरी अगर किसी ने सजेस्ट की होगी तो वो थे ह्यूगो मेरी डेवरिस। सो गाइस, so Hugo Mary Davis is one of the scientists who suggest the term mutation in first time. Then after, the third scientist which play very important role in the genetics, that the combination of three scientists, that is Sutton, Boveri and Morgan. That three scientists play very important role in the genetics because in 1902 he worked on a grasshopper. इन्होंने 1902 में ग्रास हॉपर पे सबसे पहले काम किया, और इन्होंने क्रोमोजोम, सेल के अंदर क्रोमोजोम मीन्स इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजोम। दैट टर्म इज फर्स्ट सजेस्ट बाय द थ्री साइंटिस्ट इन 1902। तो इनके अकॉर्डिंग जब कोई भी कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इन तीन साइंटिस्ट ने कहा था कि उसमें क्रोमोजोम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिन्होंने सबसे पहले काम किया था ग्रासहॉपर पे। तो ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रोमोजोम जो टर्म थी या क्रोमोजोम जो कॉन्सेप्ट था, ये दुनिया के सामने लाया था। दैट द थ्री साइंटिस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ जेनेटिक्स, बिकॉज वी नो दैट द क्रोमोजोम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ जेनेटिक्स, क्योंकि क्रोमोजोम के अंदर ही डीएनए क्या होता है? बाइंड अप करके रहता है। द अनदर साइंटिस्ट विच प्ले एज सेम एज about that two scientists, that is Austral Avery, Maclon and Yum Carty और कॉलिन मैकलॉड। तो इन्होंने जो काम किया था सबसे इंपॉर्टेंट काम, मतलब डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहले अगर किसने कहा होगा तो इस तीन साइंटिस्ट ने कहा था। और दे प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ वायरसेस, दे आल्सो कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के मदद से या फिर वायरस के मदद से उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था, और इनमें उनको पाया गया कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है। एज वेल एज ही प्रूव्ड दैट एक्सेप्ट वायरसेस को छोड़ के इस सृष्टि में पाए जाने वाले सभी जीवों में डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल करके काम करता है। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, इन 1944 में सबसे पहले अवेरी मैकलॉड, मैकलिन और कॉलिन मैकलॉड ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल except virus, each and every living organism having a DNA as a genetic material. Then after the discovery of lactoperon, हमें अच्छे से पता है कि एक टर्म होती है प्रोटीन सिंथेसिस। दैट प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए कोडॉन।
तो डीएनए कोडॉन या लैक ओपेरॉन ने सबसे पहले सजेस्ट किया था द फ्रेंच जेनेटिस्ट दैट फ्रांसिस जैकब और जैक मोनैड। इन्होंने 1961 में सबसे पहले ये टर्म डिस्कवर्ड की, दैट इज द लैक ओपेरॉन। इट इज नथिंग बट इट्स अनकवर्ड द जेनेटिक कोड्स और इट अनकवर्ड द जेनेटिक कोड्स हिडन इनसाइड द डीएनए। तो डीएनए के अंदर जो कोड होते हैं, जो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन होते हैं, या फिर 3 बेस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, या फिर लैक ओपेरॉन होते हैं, ये सबसे पहले दुनिया के सामने लाए जाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रांसिस जैकब और जैक मोनैड। तो ये साइंटिस्ट ने जो वर्क किया था, इसके बेसिस पे हमें पता चला कि डीएनए ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले 1886 में जो बताया गया था जॉन ग्रीगर मेंडल, जिन्होंने कहा कि सेल के अंदर ऐसी कोई तो भी चीज प्रेजेंट है जो कैरेक्टर ट्रांसमिट कर रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। उन्होंने उसको नाम दिया फैक्टर। देन आफ्टर इन 1901 दैट द ह्यूगो ज्यूरिस, इन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ तो भी ऐसी चीज है जो कैरेक्टर चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट टर्म इज नोन एज ह्यूगो ज्यूरिस, जिन्होंने प्रीमरोज प्लांट पे काम किया था। देन आफ्टर क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑन ग्रासहोफर वर्क बाय दी वॉल्टर एंड सूटन इन 1902, जिन्होंने क्रोमोजोम प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, जो सबसे पहले सजेस्ट किया था वॉल्टर और सूटन ने। और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम कहा गया कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज बिफोर दैट बिफोर 1902 और सॉरी बिफोर 1944 किसी को भी पता नहीं था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सभी को यह पता था कि कुछ तो भी अंदर प्रेजेंट है जिसके कारण कैरेक्टर क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। बट दे ऑल आर कंफ्यूज बिकॉज इनसाइड द सेल देयर इज सो मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मीन्स देयर इज सो मेनी फैक्टर्स आर प्रेजेंट, सो मेनी मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ आरएनए, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, सो मेनी प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। बट ऑस्टवेल, अवेरी और मैक्लॉन और मैकलॉड की इस वर्क से ये हमें पता चला कि डीएनए ही ऐसी चीज है जिसके कारण क्या कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। सो his work play very important role in genetic that suggests that DNA it act as a genetic material. Then after is very important thing that played by means that discovered by Jacob and Monod, that term is called as a protein synthesis or lack operon, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड है, न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस है, और वो रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर ट्रांसमिट करने के लिए। तो कितना इंटरेस्टिंग है देखो गाइस कि हमें सबसे पहले पता चला कि कुछ तो भी है जिसके कारण कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, बाद में हमें चेंजिंग कैरेक्टर पता चला, बाद में हमें क्रोमोजोम पता चला, बाद में हमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पता चला, और बाद में हमें पता चला कि प्रोटीन सिंथेसिस कॉन्सेप्ट। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट डीएनए विच एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। द मेन बेसिक टर्म बिहाइंड दैट इन 1871, मतलब 1871 में फ्रेडरिक मिक्सचर ने सबसे पहले सेल में डीएनए देखा, लेकिन दे डिडंट नो अबाउट दैट टर्म दैट डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट दे ओनली फाउंड समथिंग, दे फाउंड द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज नथिंग बट दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। मीन्स दैट इज द फर्स्ट टाइम, मीन्स फ्रेडरिक मिक्सचर इज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट वी आइडेंटिफाइड डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस बेसिकली इन वाइट ब्लड सेल्स। WBC में ये सबसे पहले इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इट वॉज वन ऑफ द सर्जरी इन विच फॉस्फेट रिच केमिकल कंपोनेंट वाइट ब्लड सेल में पाया गया और न्यूक्लियन में पाया गया, और ही फर्स्ट कॉल्ड दैट डीएनए इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिन, और सबसे पहले उन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन कहा गया था। सो दैट इज अ डीएनए, जो इतने सारे साइंटिस्ट ने वर्क करने के बाद एक डीएनए का एक स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जिन्होंने सजेस्ट किया दैट्स वैटसन एंड क्रिक, ये जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा स्ट्रक्चर ब्रीफली देखेंगे। बिफोर दैट वी सीन सम बेसिक टर्म अबाउट द डीएनए। एज वी ऑल नो दैट डीएनए इज एन डबल हेलिक्स. Some exceptional case there is a DNA as a single stranded, but in maximum cases DNA as a double stranded is a double helical structure. Inside the DNA there is the presence of nucleotide base sequence that we called as an adenine, guanine, thymine and cytosine, and inside the DNA that is nothing but that is a nucleotide base sequence, and functional segment of DNA
functional segment of DNA is called as a gene. Okay, so guys, it's all about DNA gene. Okay, modern concept of जो DNA था, genes is a unit of transmission of cistron, means gene is responsible for transmission of character because inside the gene there is a nucleotide base sequence. ये modern concept of gene है. हम इसका स्ट्रक्चर जो डीएनए में क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, उसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है तो प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट पीपीटी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, एज वी ऑल नो दैट each molecule of DNA consists of two strands, where each strand is made up of repeating unit is called a nucleotide. हर एक डीएनए स्ट्रैंड में दो स्ट्रैंड रहेंगे और रिपीटिंग यूनिट को हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड. द न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक एसिड. तो ये जो दिख रहा है ये राइबोज शुगर है, ये जो दिख रहा है ये फॉस्फेट है, और ये बेस सीक्वेंस है. दैट बेस सीक्वेंस इज नोन एज ना एडेनिन गुआनिन एंड एडेनिन गुआनिन थायमिन एंड साइटोसिन. दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. That is the nitrogen based sequence, adenine, guanine, thymine and cytosine. In next video we seen the basic concept regarding the structure of DNA, protein synthesis, transcription, translation and translocation. Today we only discuss about the introductory part of the DNA, how we said that the DNA as a genetic material, how many scientists play a very important role to conclude that DNA as a genetic material. So guys, hope you should understand this topic basically. Thank you so much. Bye. Take care.